कैसे आए? برا نام نہیں. اگر آپ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نہ ہوتے تو کیا آپ JUI کے سربراہ ہوتے؟ اگر جمعیت علماء اسلام نہ ہوتی تو پھر میں جمعیت علماء اسلام کا سربراہ ہوتا. مولانا فضل الرحمان ایک مقناطیس ہے، جدھر پاور ہوتی ہے اسے جا کے چھوڑ جاتا ہے. مقناطیس چمڑتا نہیں ہے، دوسرے کو کھینچتا ہے. ہم حکومتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. آپ کے پیچھے بھی آئیں گے ہم. یعنی پیچھا کرنے کے لیے اعلان، تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ اس میں نیت کیا کار فرما ہے. کیا آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ جائیں بھاڑ میں تمہاری دھمکیاں، تمہاری دھمکیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم بڑے مردانہ وار سیاست کر رہے ہیں، کوئی حیثیت ان باتوں کی ہماری نظر میں نہیں ہے اور ہمیں نہ چھیڑا جائے. عمران خان، تمہاری دھمکیاں جائیں بھاڑ میں، سیاسی موقف پر دھمکیاں دیتے ہو، یہ بچوں کا کھیل نہیں، گیلڑ بھپکیاں نہ دی جائیں. ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان کا عمران خان. کھولیں اور مولانا صاحب کو بھی اندر ڈال دیں. پٹیالہ جیل کا ایکسل صاف کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے میرے اوپر اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ نیب ہی کے گلے پڑ جائے گی. جی میں اس حوالے سے بڑا اسٹرانگ آدمی ہوں جی. اچھا، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، ان کے گلے پڑے گا. جی ہمارا کچھ ہے نہیں جی، ماں ہیچ نظارے غم ہیچ نظارے. جب میرے پاس کچھ ہے نہیں اور خامخواہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر دیں، اس کا معنی ہے کہ سب کچھ جعلی ہو رہا ہے نا. یعنی جب میرے خلاف کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے اگر گرفتار کرنا ہے تو کوئی چیز بنانی ہے نا، کوئی جعلی مقدمہ، کوئی جعلی قسم کا کیس بنانا، کوئی فائل بنانا، پھر اس کو مشتہر کرنا پہلے، پھر میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دل میں اور دماغ میں ڈالنا اور پھر اس کے بعد اقدام. یہ سب جعلی ہو رہی ہیں ساری باتیں. صحیح نہیں ہو رہا کچھ بھی سیاسی ہتھ کنڈا. آج میں آپ کو بتاؤں جی، سوویت یونین کے شکست کے بعد، اشتراکیت کے شکست کے بعد، سرمایہ داری کی فتح کے بعد، ملک پر سرمایہ کی حکومت کے بعد آج دنیا کی سیاست کے معیارات تبدیل ہو گئے ہیں. اب کوئی شخص سیاسی گرفتار نہیں ہوگا. اب گرفتار ہوگا تو وہ سرمایہ کی بنیاد پر ہوگا، اس کو کرپشن کے الزام لگا کر گرفتار کیا جائے گا. آج اگر کوئی مذہبی آدمی گرفتار ہوگا وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں ہوگا، کہے گا جی یہ انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے، دہشت گرد ہے، ان سے رابطے وغیرہ وغیرہ. یہ دو چیزیں آج دنیا کی سیاست کا محور ہوں گی مخالفین کے لیے. یا کرپشن کے الزام میں سیاسی آدمی گرفتار ہوگا، پوری دنیا میں آپ جائیں گے، یا دہشت گردی اور شدت پسندی کی بنیاد پر لوگ گرفتار ہوں گے. آج سیاسی لوگوں کے خلاف جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور مذہبی دنیا کے بارے میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اسی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے ہو رہی ہیں. وہ سب ایک آپ کا بیان آیا تھا، میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی آپ سے وضاحت لے لوں. آپ نے کہا کہ آپ نے انکشاف کیا کہ بلوچستان میں ایک ڈپٹی کمشنر نے آپ کے مدرسے کے موتمم سے کہا کہ ایک فرقہ پرست مولوی کو بلانے کے لیے کہا گیا تھا. سر آج نہیں ہے جی. تو اس کا مطلب یہ انٹرنلی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سول اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے جماعت کے ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت جس کا تعلق پنجاب سے تھا، یہاں پنجاب کا اس زمانے کا ہوم سیکرٹری ان کے گھر آیا اور ان سے کہا جی فلانا فرقہ تو حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور ہمارے لوگ تو یہ ہو رہے ہیں اور آپ علماء کرام ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں کوئی رد عمل ظاہر کریں. اس نے کہا محترم آپ سرکاری افسر ہیں، سنی بھی میں ہوں، حنفی بھی میں ہوں، دیوبندی بھی میں ہوں، مولوی بھی میں ہوں، اس کا احساس آپ کو زیادہ ہوگا یا مجھے زیادہ ہوگا؟ آپ کو مجھے پٹیاں پڑھانے والے. یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک. اور ابھی تازہ یہ کہ ہمارے ایک ذمہ دار آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک بڑے اچھے عالم دین آئے ہوئے ہیں اور آپ مدرسے میں آ کر ان کا بیان کروا دیجئے. تو انہوں نے کہا وہ تو فرقہ پرست ہے، وہ تو تکفیر کے فتوے لگا رہا ہے جی جگہ جگہ پر. جی میں ایسے لوگوں کو اپنے مدرسے میں کیسے بلاؤں جی؟ میں جی میرے علماء سے میرا تعلق ہے، مجھ سے توقع رکھی جاتی ہے. نہیں جی بہت بڑا عالم ہے بہت. یہ حالات آپ مجھے بتائیں کہ میرا ذہن جو ہے اور میرے کارکنوں کا ذہن وہ کیا سوچے گا اس ساری صورتحال میں، جب سرکاری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بیوروکریسی کے لوگ وہ میرے مدرسے میں آ کر میرے علماء کرام کو ترغیبات دیتے ہیں کہ آپ
या इनके खिलाफ लड़े या इनको बुलाए मदरसों में। तो वहां से भी क्या वजह है कि आप तो इक़्तिदार में भी रहे हैं, बलूचिस्तान की एक बड़ी आप मजबूत सियासी कुव्वत हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही, मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जो सिलसिला अगर जौलत साहब के जमाने से अब तक चल रहा है, इसको खत्म क्यों नहीं किया जा सका? नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन अगर कहीं कोई रुकावट बना है इसके लिए तो वो सिर्फ हम बने हैं। तमाम मकातब फिक्र की तंजीम, तमाम मकातब फिक्र को एक प्लेटफार्म पर लाने का अमल ये बलूचिस्तान में इसकी क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम करती रही है, जो बलूचिस्तान आज भी हम ही संभाले हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच साहब को आपने बताया, आपकी वो खैरियत लेने आए थे, एक डिप्टी कमिश्नर साहब और इनकी एक्टिविटीज के बारे में आपने बताया तो होगा। देखिए एक बात ध्यान में रखें, मेरे पास जो मुझसे हमदर्दी की इजहार के लिए आता है, मैं उस मौजू पे मजीद बहस नहीं किया करता हूँ उनके साथ। लेकिन सर ऐसी चीजों के ऐसे सवालात के जवाब तो चाहिए। मैं कोई गिला उनसे नहीं किया, कोई बात उनके सामने पेश नहीं की, मैंने उनकी जिम्मेदारियों पे छोड़ा है और वो जाने और जिस तरह वो कर सकेंगे। लेकिन आप ये उम्मीद है क्या कर सकेगा जी, मुझे आप बताएं। डिप्टी कमिश्नर तो उनके कंट्रोल में नहीं, पूरा बलूचिस्तान जल रहा है, मशक़शुदा लाशें मिल रही हैं। किसी जमाने में वो खुद यहाँ पर पार्लियामेंट में कहते थे जी हमारे हवाले करो, फिर देखते हैं अब उनके हवाले हैं, वो अपने इलाके में नहीं जा सकता अभी तक। मौलाना साहब एक सवाल दहशतगर्दी पे, फिर मैं कश्मीर पे आऊंगा। ये जो सारा मसला है, चाहे ये एक बैरूनी अवामिल है, अंदरूनी अवामिल है, एक आम पाकिस्तानी ये सवाल करता है, आपसे जानना चाहेगा ये कब खत्म होगा, हमारी जान कब छूटेगी दहशतगर्दी और इसकी वजह से जो हमें जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब तक बैनुल अक़वामी मुफादात आलमी कुव्वतों की किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती और उनकी भूख नहीं बुझती, तब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। क्योंकि दो तीन चीजें ये जहन में रखें, अमेरिका कह चुका है कि तरक्की पजीर ममालिक की जुग्राफियाई हुदूद हतमी नहीं हैं। वो कह चुका है कि 20वीं सदी बरतानिया की थी, दुनिया की जुग्राफियाई तकसीम उनके मफादात के ताबे थी। 21वीं सदी हमारी है, जुग्राफियाई तकसीम अब हमारे मफादात के ताबे होगी। ये सारी चीजें वो कह चुके हैं। ये तो 9/11 के बाद जनाब बुश खुद कह चुके हैं, पहले कहा सलीबी जंग है, तो सर हम फिर कहा खामोश तमाशाई रहेंगे, फिर कहा उसने कि शिया सुन्नी दो एक ऐसी तकसीम है मुसलमानों की कि जो मुस्तहकम और तारीखी तकसीम है, इसका भरपूर फायदा उठाया जाए सारे लोगों के लिए। और कोंडालीजा राइस ने जब इंटरव्यू दिया था, उसने एक तकरीर की थी अरब दुनिया के बारे में कि हम एक नई मशक़ वस्ता तश्कील देंगे। आज जो कुछ मशक़ वस्ता में हो रहा है इंटरनेशनल एजेंडा है, हाँ आज तो ये बैनुल-अक़वामी हम इसका हम फिर खामोश तमाशाई रहेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे, जो वो चाहेंगे हम उनकी खिदमत करेंगे। अभी तक ये खिदमत जारी है, जारी है, बहुत बड़ी रोक भी नहीं सकते आप, सियासतदान बेचारे की कोई हिम्मत भी नहीं हो सकती जी, बहसियत कौम हम नहीं रोक सकते, कुछ भी नहीं हो सकता जी, कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर तो ये एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इनएविटेबल है, हम इसके मुंतज़िर रहे हैं। बेबसी की बात, कहां तक मैं बेबसी की बातें करूं, चौंका देने वाली गुफ्तगू आपकी जारी है। हज़रत ग्रामी मौलाना फजल रहमान साहब से साथ मेरा एक ऐसा अकीदत का रिश्ता है कि मैं इनके वालिद ग्रामी हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ 1974 की तहरीक में साथ साथ कदम बढ़ाया था और मैं उन्हीं की उस क़यादत के साथ मैंने ख़त्म नबूवत की जेल काटी। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भला के आलिम दीन थे और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने उस सुन्नत को बरकरार रखा है। पाकिस्तान से बाहर इस उम्मत मुस्लिमा, आप उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदे हैं, सच्ची बात बताऊं, आप अकेले यहां पाकिस्तान के नहीं, मौलाना फजल रहमान की आवाज पाकिस्तान की नहीं, उम्मत मुस्लिमा की आवाज है और बननी चाहिए। नाम दे रही है, हो सकता है तुम दोबारा इस आइन को मुअत्तल करने की साजिश करो, लेकिन इस आइन में जो इसकी ताकत है, इस आइन ने जो खत्म नबूवत का मसला हल किया है, लिहाजा ये जो खत्म नबूवत की ताकत है, तुम जब जब इस आइन को मुअत्तल करोगे, जब जब इस आइन के खिलाफ साजिश करोगे, ये आइन बहाल होता रहेगा, ये आइन बहाल होता रहेगा। तो एक तो इस आइन ने खत्म नबूवत
का मसला हल किया है। दूसरा, ये जो आइन है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन है, इस आइन का की जो आर्टिकल 40 है 40, उसको आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, इसमें बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन ये आलम इस्लाम के इत्तेहाद का सबक भी देता है। और ना ही कोई फलस्तीन के मसले पे सौदेबाजी कर सकता है। आर्टिकल 40, ये आइन जो है, इसके खिलाफ जो आलमी साजिशें होती हैं, उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह तो खत्म नबूवत, और दूसरी वजह यह है कुछ ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। इस रास्ते में भी सबसे बड़ी रुकावट 1973 का आइन है, और यही वो आइन है जिसकी तश्कील में मौलाना शाह दुरानी, मुफ्ती महमूद, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और हमारे जो दीगर बुजुर्ग थे, उन्होंने मिलकर किरदार अदा किया। उन्होंने ऐसे ऐसे इस आइन में नाके लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे नाके लगा रखे हैं कि उन नाकों से गुजरना बहुत मुश्किल है। जो खत्म नबूवत को खत्म करना चाहते हैं, खत्म नबूवत के आर्टिकल को खत्म करना चाहते हैं, इस आइन के नाकों में से गुजरना मुश्किल है। जो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, इस आइन के नाकों में से गुजरना जरूरी है। इसलिए याद रखिएगा मेरे भाइयों बुजुर्गों, याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो शख्स भी 1973 के आइन की मुखालफत करता है, इस आइन को बदलने का मुतालबा करता है, उसका आगा देखो, उसका पीछा देखो, उसके पस मंजर में चले जाओ, उसके खानदान का जो शजरा नसब है उसको गौर से जानने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। लिहाजा ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के बहुत अहम दिन है, और इन दिनों में मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथियों पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं। और इन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आपने 1973 के आइन का तहफ्फुज करना है। वो आइन जिसकी तश्कील में मौलाना शाह दुरानी सिद्दीकी ने किरदार अदा किया, वो आइन जिसमें मौलाना शाह दुरानी सिद्दीकी ने जनाब मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद और दीगर उलमा कराम के साथ मिलकर खत्म नबूवत की शिक डाली और खत्म नबूवत का मसला हल किया। और इस पादाश में आप देखिए हमारे ये जो बुजुर्ग हैं, इनको डिक्टेटरों ने बहुत इनके हौसले तोड़ने की कोशिश की, इनको जेलों में डाला, लेकिन इन्होंने किसी डिक्टेटर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। MRD की तहरीक के जमाने में JUI को, JUP को, तमाम सियासी जमातों को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ने की साजिश की गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को और दीगर जमातों को तोड़ने की साजिश की गई। और मुझे लगता है कि हर बड़ी सियासी जमात जो है उसको तोड़ने की साजिश हो चुकी है, साजिश नाकाम हो चुकी है। अब दूसरी बड़ी सियासी जमातों की बारी है जो पता नहीं किस किस के हाथों इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। मुझ नाचीज की जो राय है उसके मुताबिक ये जो यहां पे कायदीन बैठे हैं स्टेज पर, इनमें से भी 2-3 लोगों के खिलाफ साजिशें हो रही है, और हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इंगेज करने की कोशिश की जाती है, डायलॉग के नाम पे रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। दोबारा ये कोशिश की जा रही है कौमी मुफाद में, आइन के नाम पर, पाकिस्तान का जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट है, आइए बैठते हैं, जरा आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन मौलाना साहब जो हैं उनको पता है कि असल मकसद क्या है। असल मकसद यह है कि वो सियासी कुव्वतें जो 1973 के आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और इस आइन के तहफ्फुज पर इकट्ठी हो चुकी हैं, उनको आपस में तोड़ा जाए। लिहाजा मुझे यकीन है कि अगर आज मौलाना शाह दुरानी सिद्दीकी जिंदा होते तो वो भी मुफाहमत के नाम पर किसी के साथ कोई सौदेबाजी ना करते। हमें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी भी मुफाहमत के नाम पर किसी के साथ कोई ना सौदेबाजी करेंगे और ना ही किसी के बहकावे में आएंगे, क्योंकि ये जो आज आप लोगों को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तारीख के एक फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो रहा है, तो इसमें 2 चीजें बहुत अहम हैं। 1973 का आइन, खत्म नबूवत, इसराइल। सिर्फ 1973 के आइन ने
खत्म नबूवत के दुश्मनों और इसराइल का रास्ता रोका हुआ है। आइन हट गया बीच में से, 1973 का आइन अगर हट गया बीच में से तो पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों का रास्ता साफ हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में है, मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में है, अवैस नूरानी और अनस नूरानी के हाथ में है, जनाब सिराजुल हक साहब के हाथ में है, नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल के हाथ में है, रजा रबानी साहब के हाथ में है। आपने फैसला करना है, आपने किसके साथ जाना है, और मुझे यकीन है कि आप उसी के साथ जाएंगे जिसके साथ हजरत मौलाना शाह इमाम नूरानी सिद्दीकी खड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज जो कि एक्सटर्नल पॉलिसीज को बनाने में मदद देती हैं, वो क्या हैं, मजमूई सूरत हाल सियासत पर क्या है, खित्ते की सियासत क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, इन तमाम बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिसे हाल ही में न्यूज ऑफ वर्ल्ड एक बरतानवी अखबार के मुताबिक खित्ते की पाकिस्तान में पहली मजबूत सियासी शख्सियत, एशिया में 5वीं मजबूत सियासी शख्सियत और दुनिया में 19वीं मजबूत सियासी शख्सियत के तौर पर कहा गया। और इसी के साथ चीन ने अपनी जो मौजूदा हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ उसको रिलेट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वाहिद पार्टी जो इस वक्त उनके साथ दोस्ताना मरासिम कायम रखे हुए है वो JUI है। यकीनन नाज़रीन आप समझ गए होंगे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, अमीर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। वेलकम इन द शो। तो अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और ये चीज़ें मुझे मुतासर नहीं करती, न मुझे इस चीज़ ने मुतासर किया है, न ये चीज़ें जो हैं ये तो इंसान के अंदर एक तकब्बुर पैदा करती हैं, एक इतराहट पैदा करती हैं। और अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, खिदमत के मैदान में है और अल्लाह हमसे खिदमत ले और बस निज़ाम। मुझसे पहले भी बहुत सारे चेयरमैन गुजरे हैं कश्मीर कमेटी के। किसी का नाम आता है आपको? गूंगे बहरे किस्म के चेयरमैन गुजरे हैं। और अपने पूरे दौरानिये में मैंने नहीं देखा कि वो कभी कश्मीरियों के महाजर कैंपों में गए हों और उनका हाल लिया हो। और मुझे फख्र है इस बात पर कि कोई कैंप बचा नहीं होगा जहां मैंने जाकर आपके मजलूम कश्मीरियों का हाल न किया। कश्मीर का हकीकी दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं। कराची आपका जल रहा है, बलूचिस्तान आपका जल रहा है, आपका पख्तूनख्वा जल रहा है, खून है, कुछ तो खून हर तरफ है। और हम कह रहे हैं कि जी अमेरिका नाराज ना हो, नाटो नाराज ना हो, उनकी सप्लाई लाइन बहाल होनी चाहिए, उनकी एजेंसियों को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत होनी चाहिए। इस तरह की सोच अगर है तो ये गुलामाना सोच है। और मुझे माफ फरमाए, पाकिस्तान को अगर आपने ठीक करना है, अब साहब ये बातें नहीं चलेंगी कि हम एहसास महरूमी को खत्म करना चाहते हैं। ये काफी नहीं है। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं, संभल के कदम उठाओ, संभल के चलो। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं कि एहसास महरूमी के खात्मे का लफ्ज काफी नहीं होगा, फिर एहसास गुलामी को खत्म करना होगा। जहां तक लोगों को मत पहुंचाओ, इस मकाम तक लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, मरना हमने है। यहां पर खवातीन की बात की गई, सरांखों पे मजालिम का खात्मा होना चाहिए, लेकिन उन खवातीन के भी तो जिक्र होना चाहिए कि पाकिस्तान के हवाई तैयारों ने सेटल एरिया में उन घरों पर बमबारी की जहां 5 खवातीन शहीद हुई और जिनके गोश्त के टुकड़े मोहल्ले के घरों से इकट्ठे किए गए और एक बोरी में बांधों को जनाजा पड़ा गया। वो खवातीन नहीं थी, वो दहशतगर्द हो गई, इसलिए कि वो मजहबी लोग थे। लिहाजा इंसानी हक है, चाहे वो मुसलमान। प्रोग्राम में एतजाज साहब ने कह भी दिया कि हम सदारती इंतखाब के मामले में मौलाना साहब को इसलिए दूल्हा नहीं बना सकते कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और पाकिस्तान की इमेज का मसला है, तो वो कहते हैं कि जी दुनिया मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे मजहबी जमात के सरबराह को कैसे सदर के तौर पे कबूल कर ले। ये गुलामाना जहनियत की बातें हैं। और फिर मैं अगर दोस्ती के हवाले से बात करूंगा, अच्छा एतजाज साहब, जब जमहूरियत को जरूरत हो,
تو MRD میں میرے کردار آپ تعریف کرتے ہیں، مار کھانے کے لیے، ڈنڈے کھانے کے لیے، جیلیں بھگتنے کے لیے، فضل الرحمان کی خدمات جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، آئین کے لیے قابل قدر. لیکن اگر میں پاکستان کے کسی منصب کی طرف آنا چاہتا ہوں، تمام تر جمہوری جدوجہد، ساری زندگی میں نے جمہوریت کے لیے گزاری ہے. اس آئین پر جو آج پاکستان کا آئین ہے اور میثاق ملی ہے اور قومی وحدت کا مظہر ہے، میرے والد کے دستخط ہے اس کے اوپر، میری جماعت کے دستخط ہیں اس کے اوپر. جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس ملک میں جو آئین دیا، اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، اسلام قرآن و سنت کے منافق قانون نہیں بنے گا. یہ سب بھٹو صاحب نے دیے. تمام قانون قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل انہوں نے بنائی. سب سے پہلے اس کے جو اراکین تھے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شمس الحق افغانی کو انہوں نے مفتی صاحب سے نام لے کر اس میں شامل کیا. جی اور پھر وہ نظام اس کا ان کو عطا کیا. جمعے کی چھٹی انہوں نے کرائی، شراب پر پابندی انہوں نے لگائی. یہ سارے اقدامات ان کے دور حکومت میں ہوئے. اور ان کی آپ یہ تقریر سنیں کہ جس تقریر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ملک کو ایک اسلامی دستور دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام، تو دستور کو آپ دیکھیں، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت جس کی اسمبلی میں رکنیت ہے، انہوں نے سب نے کہا ہے، سب نے قبول کیا ہے، سب نے دستخط کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی دستور ہے. اب آپ بتائیں کہ اب علامہ اقبال کی بھی نفی ہو رہی ہے، قائد اعظم کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی نفی ہو رہی ہے. میثاق ملی ہے، ملک کا نظریے کا تعین کرتا ہے، اب اس کا انکار کر رہے ہیں، اور ایسے آدمی کو آپ ملک کا صدر مملکت بنائیں.